Well, hey everyone. Today topic is about the unit first for the B.ed second year student, and the book name is Knowledge and Curriculum. I will discuss the previous year questions and the exam notes with you, so you can able to score high in your B.ed classes. Okay, in B.ed second year. So first, whenever we start a new chapter, so we should have to know about the definition first. It is the most important thing which we started to study. So knowledge and definition of knowledge. So these are the three questions that can be asked like this. You all know that what is knowledge or define knowledge is a same thing. Okay, it is not different, it is a like thing. Okay, now came to the definition. So here I must say you that knowledge is a meaningful structure of facts into some relationship. So knowledge क्या है? Knowledge है एक facts किसी भी चीज़ का जो हमें पता हो, जो हमें पता होता है, जैसे कि जो रिफ्लेक्ट करती है किसको, ट्रुथ को और अबाउट रियलिटी. ओके, एंड विजडम इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस. और विजडम क्या होगी, उसकी आउटकम होगी. ओके, आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी रिलेटेड टू लाइफ. किसकी रियलाइजेशन? लाइफ रिलेटेड रियलाइजेशन. ओके, यूनिवर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. किसके बेस्ड है ये? इंफॉर्मेशन और नॉलेज से. इन जनरल द यूज ऑफ नॉलेज इज इन थ्री मीनिंग: acquaintance, ability to do something, and propositional of knowledge. So in this you have to just describe what is knowledge. Okay, in other word, you can also elaborate your definition to get high score. So in other word, knowledge has three terms. knowledge के पास three terms है. क्या है वे? which are inter related. और वो इंटर रिलेटेड भी हैं. इंटर रिलेटेड होता है जैसे कि वन पॉइंट इज रिलेटेड टू द सेकेंड एंड सेकेंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट. सो सेम विद थ्री टर्म्स हैं: इंफॉर्मेशन, knowledge and wisdom. These three terms are interrelated and these three terms related to the knowledge. So अब हम इन थ्री को डिफाइन कर देंगे. थ्री को डिफाइन करेंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन एलोब्रेट होगा. इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द बेयर फैक्ट्स. इंफॉर्मेशन क्या है? जो बेयर फैक्ट से, जो फैक्ट से रिलेटेड हो, जो वास्तविकता से रिलेटेड हो. विच फॉर्म डाटा. इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो कि बेयर फैक्ट्स होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? डाटा फॉर्म करते हैं. और तो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? इट कैन बी क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव और बोथ. क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है. द मेन टर्म इज द विजडम विच इज प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन. सो विजडम तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था. विजडम क्या होगा हमारा? द मेन टर्म इज द विजडम विच इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी रिलेटेड टू द लाइफ. जो कि किससे रिलेटेड है? रियलिटी, हमारी जो लाइफ की रियलिटी है उससे रिलेटेड है. यूनिवर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इन फैक्ट इट इज बोथ ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. विजडम इज द culmination of human experience and realization in life. जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस लेते हैं हम और रियलाइजेशन करते हैं लाइफ में, वही हमारी विजडम है. So knowledge is of much importance to the man in modern period. Okay, in modern period, like the period which we are living now, there is a much explosion of knowledge. There is no limit or boundaries of knowledge. You all know that now we can get knowledge from a lot of sources. A lot of sources, like we can get knowledge from the computer, we can get from the internet, by surfing the internet. So there are a lot of platform available now that where we can take knowledge. There's no limit or boundaries of knowledge. All our knowledge is founded on an ultimate drive and experience. So कैसे नॉलेज फाइंड आउट होगी? जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो. वी नो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गेन. Everything is possible to gain. Every knowledge we can find out today. But how we get into our mind? By experience the things. Like if I don't know about what is knowledge, so if I not search about what is knowledge, so how I will be able to tell you that what is knowledge? So that is called experience. Definition है
4 to 5 डेफिनेशन है जो कि अलग अलग जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने प्रोवाइड की है. सो वी ओनली नो अबाउट कॉमन मीनिंग ऑफ नॉलेज, सो यू कैन चेक आउट दिस. बट अकॉर्डिंग टू इंडियन क्या होगी, नॉलेज इज नेम एज विद्या. एज वी ऑलवेज से दैट the notebook is vidya, okay. The book is vidya, so don't don't touch it with food. It involves facts about reality, cognitive change as well. According to renowned philosophy, knowledge is light. Knowledge क्या है, एक प्रकाश है. Just as light dispels darkness, just as light dispels, जैसे लाइट डिस्पर्स होती है डार्कनेस में, फैल जाती है, डिस्पर्स. इन द सेम वे नॉलेज डिस्पर्स इग्नोरेंस. सो सेम नॉलेज भी क्या होगी, फैल जाएगी अगर आप उसको इग्नोरेंस में इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है. देयर इज नो सिंगल एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. देयर इज नो सिंगल एग्रीड डेफिनेशन ऑफ, एक कोई सिंगल एग्रीड डेफिनेशन नहीं है नॉलेज की, ओके. और आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं. ये लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक्स हैं और आप इनको बाय अमेज़ॉन और बाय फ्लिपकार्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं. अमेज़ॉन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं. सो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज देखते हैं. According to Vedanta philosophy, the term Vedanta means that which comes at the end of the Vedas, जो कि आखिरी में आती है वेदास के. The term Veda means knowledge and has 2 aspects. वेदा का मतलब होता है नॉलेज और इसके 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं. मंत्रास और हाइमन्स और स्मिहत्स लाइक द 4 वेदास. कौन कौन से हैं 4 वेद हमारे, ऋग, यजुर, समा एंड अथर्ववेद. ब्राह्मण्स आर प्रोज टेक्स्ट टू प्रेयर्स. ब्राह्मण क्या है भाई, किसके प्रेयर के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, यू नो. तो द ब्राह्मण इज कॉल्ड द आर्यंस वेयर फिलोसफिकल स्पेक्युलेशन हैज इट्स बिगनिंग. द concluding portion of the Aryans are called in the उपनिदास जो थे हमारे, ये क्या है, आर्यंस के बारे में बताया गया है. दीज उपनिदास आर द इसेंस एंड क्रीम ऑफ वैदिक फिलोसफी. ये क्या है, जरूरी है और ये क्या है, मेन पॉइंट है किसके, वैदिक फिलोसफी के. एज पर इंडियन व्यू नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप. इंडियंस के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, 2 टाइप की है. दैट इज पैरा विद्या और अपारा विद्या. पैरा विद्या इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड, external world. It can be derived through 5 sense and reasoning. Aparavidya is related to the world and is spiritual in nature. It is the most elevated part of the human nature. It is related to the soul, spirit and good and relationship. So paravidya is related, paravidya क्या है, इससे फिजिकल वर्ड से रिलेटेड है, मतलब एक्सटर्नल वर्ड से जो हमें पता है उससे रिलेटेड. और अपाराविद्या किससे रिलेटेड है, स्पिरिचुअल, जैसे कि स्पिरिट होती है आत्मा से, इन नेचर, और नेचर से रिलेटेड है. So there is the difference between the para and the apara vidya. Okay, then next came to the second point, that is concept of knowledge according to the Bhagavad Gita. So we are just studying what is the concept of knowledge. First we study concept of knowledge according to Vedanta philosophy. Now we will discuss concept of knowledge according to Bhagavad Gita. According to the educational philosophy, okay, मतलब द भगवत गीता इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इंडियन विजडम. ये एक खजाना है किसका, जो भारतीय है उनकी बुद्धिमत्ता का. इन द भगवत गीता नॉलेज इज डिफाइंड एज द दो विच वी लुक एट ऑल लिविंग बींग्स, थ्रो विच वी लुक एट ऑल लिविंग बींग्स विद ए सिंगल एंड पेशेंट एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओनली, दैट इज कॉल्ड प्योर नॉलेज. विच वी लुक ऑल लिविंग बींग्स, जब भी हम किसी लिविंग बींग्स को देखते हैं और अनपेशेंट एटीट्यूड के साथ, सो वी कैन सी अ यूनिटी इन दैम, दैट इज नोन एज द प्योर नॉलेज. लाइक इन उपनिदास, okay, शायद उपनिदास, I don't know how to pronunciation that. In the Gita, knowledge has been bifurcated in apara and para. Concept of knowledge and the Mimamasa philosophy. ये भी कंसेप्ट है किसका, नॉलेज का.
According to this philosophy, knowledge is that which provide the experience of unknown object. इस फिलोसफी में बताया गया है कि नॉलेज वो है जो कि हमें एक्सपीरियंस कराती है अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में, दैट विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्ट बाय अदर नॉलेज, जो कि अदर नॉलेज से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता, एंड दैट विच इज़ फ्री फ्रॉम अदर डिफेक्ट्स, और वो फ्री होता है अदर डिफेक्ट्स से. Thus, valid knowledge is that which give knowledge of the meaning of an unknown element. According to philosophy, there are two type of knowledge: material knowledge and spiritual knowledge. इस फिलोसफी ने जो ये मीमांस फिलोसफी है, इसमें टू टाइप्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइड की है, मैटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज. मैटेरियल नॉलेज क्या होगी? Material knowledge or education is attached and involved in material properties and pleasure of sense. It is an empirical knowledge, so it is incomplete or imperfect knowledge. ये क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी और इम्परफेक्ट नॉलेज होगी. हमें नॉलेज जरूर होगी मटेरियल की, लेकिन इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट. स्पिरिचुअल क्या होगी? इट इज एसोसिएटेड विद द नॉलेज रिगार्डिंग गॉड. द स्पिरिचुअल नॉलेज education is true knowledge education which gives knowledge of God, Brahma. It is right that one has to be detached and its ultimate goal is to become merged into God himself. So realization of essential unity between soul and God. जो सोल होती है, आत्मा, जो नॉलेज हमें गॉड की है, और जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है टू बिकम मर्ज्ड इनटू गॉड हिमसेल्फ. सो द रियलाइजेशन ऑफ इसेंशियल यूनिटी बिटवीन सोल एंड गॉड. सो जो हमारी आत्मा और जो भगवान के बीच का जो इसेंशियल यूनिटी है, मतलब जो बंधन है दोनों का, उसकी रियलाइजेशन को भी हम स्पिरिचुअल नॉलेज बोलते हैं. और कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज आ जाता है. इंडियन एजुकेशन इज द आउटकम ऑफ द इंडियन फिलोसफी और एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज हैव यूनिक इम्पोर्टेंस इन लाइफ एंड एजुकेशन. वैल्यूज क्या है भाई? वैल्यूज की तो यूनिक इम्पोर्टेंस भी है लाइफ में और एजुकेशन में भी. दे आर हेल्पफुल इन रियलाइजिंग द पर्पज एंड गोल ऑफ लाइफ. सो वैल्यूज क्या हेल्प करती है हमारा रियलाइजेशन करने में? पर्पज क्या है हमारी लाइफ का, गोल क्या है. While emphasizing the importance of spiritual value, Dr. Radhakrishnan write, neither wealth nor poverty is essential precondition for the evolution of the spirit. ना ही तो धन और ना ही गरीबी ये क्या है? इसेंशियल है. किसकी? प्री कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट. कि हम आत्मा की इवोल्यूशन के लिए ये दो चीज़ें जो है नेसेसरी नहीं है. सो वैल्यू शुड बी कल्टिवेटेड through a proper system of education. Education is the only instrument through which development of spiritual, moral, social, culture and other values can be ensured. एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ से डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल, कल्चर एंड अदर वैल्यूज कैन बी एंश्योर्ड. सो सॉरी फॉर दिस टू मच स्पीड, but here I want to tell you that everything is related to our life and we know that is knowledge. Okay, concept of knowledge. According to Buddhism like Vedanta admit ignorance to be the root cause of suffering. Ignorance ही क्या है? जो कि मेन रूट जड़ बोलते हैं जिसको. सफरिंग मतलब जब हम किसी चीज़ से सफ़र करें. सो इफ इग्नोरेंस इज रिवॉर्ड, अगर इग्नोरेंस को रिमूव कर दिया जाए, द एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल. सो जो एंड होगा उसका सफरिंग का, वो पॉसिबल हो जाएगा. ओनली बाय नॉलेज वी आर एबल टू इराडिक्ट आवर सफरिंग्स. नॉलेज से ही हम एबल होंगे इराडिक्ट करने के लिए सफरिंग को. नॉलेज इज रिवोल्यूशन. और वर्ड नॉलेज, क्राफ्ट मीन्स, मेडिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट. यू कैन वर्ड क्या होगा? वर्ड क्या है? It include an integration of the word formation, ethymology, another type of art. Craftsman क्या होगा? Different type of crafts industry, another type of art. Medical क्या होगा? Related to medicine, surgery and physiology. Spiritual क्या होगा? Which is related to the Buddhism. It includes the study of Buddhism, comparison of their philosophy and ultimate goal of like with Buddhistic philosophy or related to the God. Okay, spiritual education. Now it came to the what is knowledge. Knowledge explain the different type of knowledge. Okay, so here the meaning knowledge which I told you before. Now the type of knowledge. So type of knowledge is prior knowledge and posterior knowledge. Okay, prior knowledge क्या होगा?
is a knowledge that is attained independently of experience. It means that there are certain assumptions that one takes for guaranteed. This knowledge is non-empirical. For example, if a child is told that a certain object is a table, so that child knows that table is in 3D. So the knowledge is a child can forget. This knowledge child can forget. एम्पिरिकल नॉलेज क्या होगी, विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस, ये तो एक्सपीरियंस से होगी. और प्रियोरी नॉलेज क्या होगी, जो हम बच्चे को खुद बताते हैं या किसी भी इंसान को खुद बताते हैं, उसको प्रियोरी नॉलेज बोलेंगे. स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज क्या होगी, ओके स्पेसिफिक टाइप पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी ये स्पेसिफिक टाइप देख लो एक बार. ऑथोरेटिव नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, एम्पेरिक नॉलेज, रैशनल नॉलेज, पैरामैग्नेटिक नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज एंड इंट्यूटिव नॉलेज. Okay, so this is the homework for you. You can read it, and if you are able to understand it, so you can mention in comment that if you are able to understand it or not. And next video of regarding this chapter will be very soon, and it will be not based upon the book, it will be based upon the notes of the knowledge and curriculum. Okay, thank you so much for watching this video.